you how to prepare for the final exam. Okay, class 9. See, first of all, you see the MCQ videos of all the chapters of class 9, including strings also obviously. ठीक है, सारा MCQ का वीडियोस देखना, उसको पूरा याद नहीं करना है thoroughly. You have to just watch it once. That will be in your mind. Okay. I have made a separate playlist also of MCQ 9 and 10. Okay. Then separate playlist is for class 9 also, class 10 also. There also I have put the videos. So MCQ, you can go to the MCQ playlist and see the videos of your chapters, like strings is there. Okay. Conditional construct means if else. Iterative construct. Iterative construct means loops chapter. Then input in Java, then data types, operators. Okay, all these math functions. You see all the videos for MCQ. Then I have uploaded 2 more videos 10 days ago, finding output in loops and finding output in strings. So all the 40 marks will be there. Okay. Then learn the definitions, whatever definitions are there. Then I have uploaded one video for string functions also. What are string functions and how do they work? तो वो बहुत important है. If you learn them, then you can answer various theory questions, short answer question, and you can find the output also. Without learning them, you cannot find the output. So you have to learn them. So you can see that video also. That video is many days back. You search it. Okay. It must be in class 9 playlist that I have made when I started teaching strings at the beginning only. Like that you do. So this will be your theory portion. Then coming to programming, study series and pattern. Okay, because one question will surely be from there. If you cannot do at all, then also you try. Okay, one video each I have uploaded for series and pattern. So if you see that video, now that much is enough for solving the program. Okay, like that you do. Then loops chapter you solve. All the different types of numbers from while loop. Okay, like that you have to do. The strings chapter, I will be giving you I'll be showing, means you can do all the programs related to vowels, displaying the vowels, counting the vowels. Okay, then changing the vowels to capital letter, then counting the number of words, like that, displaying each word from the sentence. Okay, finding the frequency of a word in a sentence, checking palindrome word, whether the word is palindrome or not, counting, converting the string to short form. Many programs like this you can do. Okay, so let us see some programs. These programs I am showing you just for the sake of understanding strings. Okay, see, whenever you solve a string program, what are you supposed to do? क्या करना चाहिए? देखो, first of all, enter the string. Input statement for string is next line. Then this message is for output. Run the loop. Loop कैसे run करेंगे? Always 0 to less than length. In very 1% cases or 2% cases only we write length -1. ठीक है? So that is done when we are writing caret I plus 1 every time. Okay, we are accessing a location further than the current location. So whatever word you enter, like I have entered virtual. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So your loop will be I equal to 0. 0 less than length. Length will be 7. ठीक है, length 7 होगा. Then after running in all the programs, I am not telling for one program. सारा प्रोग्राम ऐसे करना है. पहले इनपुट लेना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर इनपुट लेना है. इनपुट लेने के बाद लूप को रन करना है. ठीक है, तो हियर वी विल नॉट राइट इक्वल टू. ठीक है, इक्वल टू लिखने से एरर आएगा. वो एरर शो करने के लिए दिखा रहे होंगे किसी को. ओके, so I0 to I less than length, less than 7. Then take out the character by using the caret function. S dot caret I means S dot caret 0. V. Is V a vowel? No. Then S dot caret 1 I is a vowel, print I. S dot caret 2 R is not a vowel. S dot caret 3 T.
not a vowel, s dot caret 4 u, again u will get printed, s dot caret 5 a will also get printed, s dot caret 6 l will not get printed. Over. So like this we will be able to print all the vowels. Like if we have to count, then don't print. ठीक है, इसको प्रिंट नहीं करो, यहाँ एक काउंटर ले लो, सी लाइक दिस, हियर यू टेक वन इंटीजर वेरिएबल इंट सी इक्वल टू 0. ठीक है, एंड इनसाइड द सेम इफ condition write C++, means whenever we will find a vowel we will increase the value of C by 1. once increase कर देंगे so it will get counted, and then outside the for loop we will print C, number of vowels is plus C, like that. तो ऐसे काउंट भी हो जाएगा. उसी तरह से अगर तुमको कोई बोल दिया मीन्स फ्रॉम एनी वर्ड विच यू हैव एंटर्ड टेक कन्वर्ट द वॉवेल्स ऑफ द वर्ड टू कैपिटल लेटर, सपोज ऐसा कुछ दे दिए कंडीशन. ठीक है, तो व्हाट विल वी डू? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक वन स्ट्रिंग वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द आउटपुट लाइक str and initialize the string with double inverted commas, don't put space in between. Then what do you do? No need to print. Inside the if condition जैसे तुमको vowel मिला you have to convert to capital letter. ठीक है, so you will write str equal to str plus कैरेक्टर. एक कैरेक्टर को अपर केस में चेंज करने के लिए यू विल हैव टू यूज कैरेक्टर फंक्शन. ठीक है, सो विल राइट कैरेक्टर डॉट टू अपर केस. देख लो, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस एंड इनसाइड इट यू राइट CH. तो CH इज ऑब्वियसली वॉवेल, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हुआ है तभी नहीं इसके पास जाएगा, तो CH वॉवेल ही होगा, तो उसको अपर केस में चेंज कर दिया. और बाकी लेटर्स के लिए बोलोगे क्या करना है, तो राइट एल्स str इक्वल टू str प्लस CH. तो बाकी लेटर एल्स में चला जाएगा. बाकी लेटर मीन्स कॉन्सोनेंट्स, तो वो एज इट इज अटैच हो जाएगा. str में प्लस साइन लिखने से स्ट्रिंग के साथ कुछ भी अटैच हो सकता है, कैरेक्टर भी अटैच हो सकता है, दूसरा स्ट्रिंग भी अटैच हो सकता है, दूसरा नंबर भी अटैच हो सकता है. ठीक है, और उसके बाद लूप के बाहर str को प्रिंट कर दो, ओनली दिस मच. सो लाइक दिस यू कैन हैंडल वॉवेल प्रोग्राम्स. इसी तरह से अगर तुमको कोई और प्रोग्राम दे दिए जैसे कि सेपरेट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, कैरेक्टर निकाले ना, यहाँ वॉवेल के लिए कंडीशन लिखे इफ CH इक्वल टू AEIOU. ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल ले लो, क्योंकि सेपरेट करना है V वॉवेल्स के लिए और C कॉन्सोनेंट्स के लिए सपोज. तो ये प्रिंट नहीं करोगे, इसमें लिख दोगे V इक्वल टू V प्लस CH. तो इसमें इफ कंडीशन के अंदर जाएगा तो सारा वॉवेल्स V के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और एल्स C इक्वल टू C प्लस CH, सारा वॉवेल C के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. बस उसके बाद दोनों को प्रिंट कर दो सेपरेटली, सारा वॉवेल सेपरेट हो जाएगा, सारा कॉन्सोनेंट सेपरेट हो जाएगा. सो लाइक दिस यू कैन डू चिल्ड्रन. ओके, ये कुछ सिंपल प्रोग्राम्स हो गया. इसके अलावा काउंटिंग द लेटर्स भी ट्राई कर सकते हो. ओके, काउंटिंग द लेटर्स. तो काउंटिंग द लेटर्स के लिए एक जस्ट अ सेकेंड, आई विल ओपन दैट प्रोग्राम वंस अगेन. काउंटिंग द लेटर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस ओनली. आफ्टर टेकिंग आउट द कैरेक्टर बाय राइटिंग s डॉट कैरेट i वी विल चेक लेटर्स कैसे काउंट होता है, कैपिटल सेपरेटली, स्मॉल सेपरेटली, डिजिट सेपरेटली, सिंबल सेपरेटली. तो यू राइट द कंडीशन अकॉर्डिंगली. तो कंडीशन लिखना बहुत आसान है, इसीलिए फंक्शंस याद करने बोले हैं. क्या कंडीशन होगा? इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ब्रैकेट में CH, एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस ब्रैकेट में CH, क्योंकि CH के अंदर सारा कैरेक्टर आएगा एक एक करके. एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ब्रैकेट में CH, और लास्ट में सिंबल के लिए कुछ लिखने का जरूरत नहीं, खाली एल्स लिख दो, हो गया. उसी तरह से लूप्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स तो सारा कर लोगे. अब तो एक वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर सारा बताना तो पॉसिबल है नहीं, सो यू स्टडी द टाइप्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, इसके बाद इन जनरल प्रोग्रामिंग में हम लोग जैसे HCF पढ़ते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स. ओके, तो HCF से रिलेटेड हम लोग GCD भी पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो GCD जो है अगर उसको वाइल लूप से बनाने के लिए दिया जाए तो कैसे बनेगा देखो. तो GCD होता क्या है, जिसे तुम लोग को याद ही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई दो नंबर लेते हैं, सपोज वी टेक एनी टू नंबर्स, A इक्वल्स टू 22
एंड बी इक्वल्स टू 4। तो इसका जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ऐसे डिवाइड करते हैं 4 को 22 को 4 से, 4 इंटू 5 इज 22 बचा, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, 0 बचा, सो 2 इज द जीसीडी। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो ऐसे भी प्रोग्रामिंग, HCF बोलो या GCD बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। तो ऐसे भी प्रोग्रामिंग बनाया जा सकता है। तो ऐसे बनाने के लिए हमको व्हाइल लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो क्या किए हैं, इंट ए बी, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ही इनपुट ले लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनर का यूज करके भी ले सकते हैं बाय राइटिंग sc.next int। यहाँ लिखे व्हाइल a मॉड्यूलस b नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं है तब तक रन करेगा। तो लाइक दिस 22 मॉड्यूलस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ट्रू होगा ना। 22 को 4 से डिवाइड करो तो 0 नहीं आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। तो r इक्वल टू a मॉड्यूलस b, r में स्टोर कर दिए 22 मॉड्यूलस 4, तो ये क्या स्टोर हो गया 2। a इक्वल टू b, तो a हो गया 4, b इक्वल टू r, b हो गया 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे a मॉड्यूलस b, सो a इज हाउ मच नाउ 4, यहाँ चेंज कर दिए ना, और b कितना है r मतलब 2, तो 4 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब b जो है a को डिवाइड कर दे रहा है, तभी तो नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स हो गया। इसका मतलब b अब जीसीडी है, तो बस लूप के बाहर आओ, प्रिंट जीसीडी इक्वल टू b। तो ऐसे कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सी आई विल शो यू ऑल्सो। देखो जीसीडी को रन करके दिखाते हैं। वॉइड में कोई भी नंबर ले लो, सपोज आई एम टेकिंग 44 एंड अनदर नंबर आई एम टेकिंग 6, ठीक है। सी जीसीडी इक्वल टू 2, इसका भी जीसीडी 2 आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेंगे हम लोग खुद से ही। सी 44 एंड 6, तो 6 से 44 को डिवाइड करो, सो 6 7 जा 42, 2 बचा, फिर 2 से 6 को डिवाइड करो, देखो डिवाइड हो गया ना, दैट्स वाई 2 इज द जीसीडी। बस यही है, ओके। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे राइट द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ स्विच केस। 2 प्रोग्राम दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल एक सीरीज एक पैटर्न ही है, स्विच केस के हेल्प से लिख के दिखाना है। तो उसमें करना क्या होता है, देखो बहुत आसान सा बात चीज है, ठीक है। तुम लोग को दिखाते हैं हम। स्विच के मान लो 2 एक सीरीज एक पैटर्न दिया हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, और 2 सेपरेट प्रोग्राम नहीं बनाना है। क्वेश्चन में लिख दिया है सॉल्व द प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस और राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो क्या करोगे, जैसे क्लास लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखोगे, ओके। उसके बाद जो इनपुट लेना है इनपुट ले लो, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी एंटर करना है, ठीक है। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिस्प्ले करोगे प्रिंट मेनू, जैसे 1 फॉर क्या है, सीरीज, फॉर एग्जांपल 1 में सीरीज है। स्विच केस कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, स्विच केस एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है। 2 फॉर सपोज पैटर्न, 2 में मान लो पैटर्न है, ऐसे मेनू बना दिए। उसके बाद बोलेंगे एंटर चॉइस, और इसके लिए 3 मार्क्स होता है, 3 to 4 मार्क्स स्विच केस का पैटर्न के लिए, स्विच केस का स्ट्रक्चर के लिए मतलब। तो नहीं लिखोगे तो 3 मार्क्स तो कम से कम मिनिमम डिडक्ट हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम सही रहेगा तो भी। उसके बाद चॉइस एंटर कर दो, इंट ch इक्वल टू sc.next int। ऑब्वियसली स्कैनर क्लास ये सब तो लिखोगे ही, ठीक है। फिर इसके बाद स्विच का बॉडी स्टार्ट करो, स्विच ch। अब केस 1 में क्या करना है भाई, सीरीज का प्रोग्राम को सॉल्व कर देना है, आंसर को प्रिंट कर देना है, ठीक है। सीरीज का सम जो फाइंड करो उसको प्रिंट कर देना है, प्रिंट दैट, देन राइट ब्रेक जरूर लिखना, देन सॉल्व केस 2 में पैटर्न प्रिंट करना है तो पैटर्न प्रिंट कर दो, देन राइट ब्रेक।
और लास्ट में लिखो डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर एरर मैसेज चॉइस इज प्रिंट चॉइस इज रॉन्ग, स्विच बंद करो, देन मेन देन क्लास। ऐसे स्ट्रक्चर को खाली ये स्ट्रक्चर बता दिए तुमको, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम को सॉल्व कर देना है, जो भी प्रोग्राम दिया है। अंडरस्टूड? ऐसे किया जाता है। और इसके अलावा तो सारा तरीका बता दिए। देखो क्वेश्चन तो कोई नहीं बताएगा ना एग्जाम के पहले, दैट विल बी ए चीटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए ही चीटिंग है। तो तुमको करना क्या है, जैसे बताया है वैसे पढ़ो। एमसीक्यू के लिए सारा वीडियोस देख लो, आउटपुट्स के लिए 2 वीडियो डाले हैं, लूप्स और स्ट्रिंग्स का, उसको स्ट्रिंग्स का सारा फंक्शंस के लिए भी वीडियो डाले हैं, उसको भी याद कर लो। प्रोग्राम्स के लिए हिंट बताए ही, स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम कैसे समझा जाता है, तो सारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कर लो। वॉवल से रिलेटेड जितना प्रोग्राम्स है, सेंटेंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है 2-3 उसको कर लेना है। वॉवल से रिलेटेड जो 2-3 प्रोग्राम है, कुछ जनरल प्रोग्राम्स कर लिए जैसे अभी हम बताएं, उसको सुन लेना ध्यान से। उसके बाद फिर लूप चैप्टर से बता दिए, वाइल लूप का सारा टाइप्स ऑफ नंबर्स का प्रोग्राम कर लेना है। इजी और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, जैसे 5-6 प्रोग्राम कर लोगे ना तो उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके फिर उसके बाद सीरीज़ और पैटर्न के लिए एक वीडियो डाले हैं, उसको जरूर देखना। उसको देख लोगे गारंटीड तुम्हारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। स्विच केस का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है वो समझा ही दिए, और स्विच केस का स्ट्रक्चर लिख के ही प्रोग्राम बनाओगे, स्विच केस का डिमांड रहेगा तो। ओके ऐसे करना है। और इफ एल्स का प्रोग्राम तो नेस्टेड इफ एल्स का तो नॉर्मल ही होता है, उसमें बस एक चीज़ तुमको ध्यान देना है, जैसे लिखा रहता है सब फर्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज, मोर देन 10 डेज, तो फर्स्ट नेक्स्ट का यूज़ करेगा तो मतलब माइनस कर करके सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि रुक जाओ हम एक प्रोग्राम दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी फाइंड आउट वन प्रोग्राम फॉर यू। ओके देखो जैसे ये प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम निकाले इलेक्ट्रिक बिल, इसको समझाते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट अप टू 200 यूनिट्स या फर्स्ट 200 यूनिट 6.5 पर यूनिट, फिर है नेक्स्ट 150 यूनिट्स, देन 7.5 पर यूनिट, एंड देन मोर देन 350 यूनिट्स ₹8 पर यूनिट, एंड देन उसमें एक सर चार्ज भी कैलकुलेट करने बोल दिए हैं। जब मोर देन 315 यूनिट्स होगा तो 2.5% टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल चार्ज। और देखो कैसे लिखे हैं, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इफ यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 200। फर्स्ट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 तक होगा, 0 से लेकर 200 तक, तो 0 × 6.5 या 200 × 6.5 जो भी एंटर करोगे, 190 × 6.5। दूसरा है मोर देन 200 एंड लेस देन और इक्वल टू 350। अब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अप टू 200 अलग हो गया और मोर देन 200 अलग हो गया। ओके तो इसमें करोगे 200 × 6.5, क्योंकि 200 से ज़्यादा होगा तभी ना इस कंडीशन में एंटर करेगा, देन ओनली इट विल एंटर। सो यू विल राइट 200 × 6.5, देन प्लस यूनिट्स माइनस 200 × 7.5। सो वट एवर नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी मोर देन 200 that will come out from here and multiplied with 7.5. then last में 3 parts में distribute हो जाएगा। how? see first 200 × 6.5, then 150 × 7.5, then more than 350, 200 plus 150 350 हो गया, तो यूनिट्स माइनस 350 × 8 जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा। और सर चार्ज एक एडिशनल दिए हैं तो उसका 2.5%, तो क्या करना है, चार्ज प्लस 2.5% भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे हम 0.025 लिखे हैं तो तुम लिख दो 2.5/100 चलेगा। 2 में 0.5 लगा हुआ है ना,
2 में 0.5 लगा हुआ है ना, तो वो 0.025 निकाल लेगा। जब तुम 2/100 सिर्फ लिखोगे तब कंप्यूटर पर नहीं समझ में आएगा, तो उस केस में 0 दे देगा आंसर, क्योंकि तुम्हारा इनपुट में डेसिमल नहीं है। ओके, तो 2.5 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल फाइंड आउट 0.025 इनटू चार्ज। तो जो चार्ज निकाले उसका 2.5% निकल गया यहाँ पे, और दैट विल बी एडेड विथ चार्ज एंड देन डिस्प्ले चार्ज। तो ऐसे होता है। फर्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट इसमें क्या कंडीशन रहेगा, फर्स्ट 200, नेक्स्ट 150, देन मोर देन 350, फर्स्ट नेक्स्ट एंड देन मोर और अबव। और किस में माइनस नहीं करना होता है इफ एल्स के प्रोग्राम में, अप टू 10,000, मोर देन 10,000, अप टू 50,000, मोर देन 50,000, उसमें माइनस नहीं करना होता है। लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।